Good day to all of you and a very warm welcome to my channel. I am Mrs. Harita Sadhrani. I will explain you State Board Standard 4th Mathematics. I will do the explanation in both language, English and Hindi, the way I am doing in history. Okay? So let us start with the first chapter. Chapter number 1, Geometrical Figures. In this chapter, we will deal with topics like angles, circles and geometrical figures. First, we will see what are the angles. In angles, we have to learn the definition of angles and types of angles such as right angle, acute angle and obtuse angle. Before we learn or before we read the definition of angle, let us see where we can see the angles in our day-to-day life. हम पहले ये देखेंगे कि हम angles कहाँ देखते हैं हमारी रोज़ की ज़िंदगी में. ये देखिए, ये जो पिक्चर है मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया है. ये क्या है? हाँ, ये एक आपकी खेलने की घसरगुंडी है जिसे आप गार्डन में देखते हो. ओके, सो दिस इज़ द slide on which you play on the gardens. Okay, if you watch this slide properly, you can see there is an angle formed by this slide. See, this red line which is attached, which is close to the slide, and the another line which is close to the ground is forming an angle. Okay, means when two lines meet at a common point, an angle is formed. Similarly, backside of a slide also you can see. See, this red line is joining to the ground line, red line. Okay, and these two lines are meeting at the common point where an angle is formed. Similarly, in the next picture, an angle is formed between a ladder and a ground. See, the red line you can see the red line of the ladder and this red line of the ground. When they meet at a common point, an angle is formed. We can also take the example of this roof. One side of a roof and the other side of a roof, when they meet at a common point, angle is formed. Now let's see the next image. You can see the angles are also formed in trees. Yes, see, the angles are formed in the trees with the trunk and the branches. See, this is a main trunk. With this trunk and the branches, you can see the angle is formed because your trunk and your branches are meeting at a common point. See, this your trunk meets to this branch at this common point. Similarly, this branch is meeting the trunk at this common point, and this trunk is meeting this branch at this common point. Okay, so we can see angles between the trunk of a tree and its branches. Similarly, one more angle we can see between the electrical pole and the ground. The electrical pole meets ground at a common point, an angle is formed. The angle is formed at this point. Okay, now let us see the definition of the angle, keeping in the mind the images we have seen earlier. Okay, now what is the definition of angle? An angle consists of two arms and a common vertex. Yes, what is an angle? Angle consists of two arms and a common vertex. हमने देखा पीछे में हर जगह पे दो लाइन थी. उन दो लाइंस को हम कह सकते हैं आर्म्स. ये जो लाइन है और ये लाइंस है उन्हें हम ज्योमेट्री में
आर्म्स कह सकते हैं। ये जो दो लाइन दिख रही है ना, ये दो लाइनें जो है वो आर्म्स है और जो कॉमन पॉइंट पे मीट होती है। ओके, the other definition which is given in your textbook is an angle is formed wherever two line meet. Okay, now let us understand this definition with the help of this diagram. This diagram of angle, geometrical representation of an angle. Now AB is one arm and BC is another arm. These two arms meet at a common point which is called vertex. Once again, arm AB and arm BC meets at a common point, okay, which is called vertex. And this common point an angle is formed. ओके, ये दो हाथ है, आर्म्स मतलब ये हाथ या लाइंस कहाँ पे मीट होती है? एक कॉमन पॉइंट पे मीट होती है। उस कॉमन पॉइंट को हम ज्योमेट्री में क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ओके ओके, नाउ हर एक को मेजरमेंट करने की एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है। हमने थर्ड में पढ़ा है, हाँ, जैसे कि हमें लेंथ मेजर करनी है, डिस्टेंस मेजर करनी है, तो हम किलोमीटर या मीटर का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई लिक्विड चीज़ मेजर करनी है, दूध है, तेल है, ऑयल है, कुछ ऐसे मेजर करना है, तब हम लीटर्स का यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, राइट। अगर हमें कुछ वेट मेजर करना है, राइट, तो हम क्या यूज़ करते हैं? किलोग्राम्स एंड ग्राम्स फॉर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। वैसे ही अगर हमको एंगल मेजर करना है, मतलब एंगल मतलब क्या? इन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है तो हम किस यूनिट में उसे लिखेंगे? वी विल राइट दैट इन द डिग्री, हम उसको डिग्री में लिखेंगे। द यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज डिग्री। ओके, मतलब क्या? इन दो आर्म्स के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे मेजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है डिग्री। और उसे लिखते कैसे? हाउ वी विल राइट द डिग्री? सी, ये आपको ऊपर का पॉइंट 0 दिख रहा है, हाँ, ये जो 0 दिख रहा है ना, वो डिग्री का सिंबल है। अगर आप ये 0 नहीं लिखेंगे तो फिर वो सिर्फ नंबर 30 आप रीड करोगे। क्या रीड करोगे? आप सिर्फ नंबर 30, आप एंगल की डिग्री रीड नहीं करोगे। अगर आपने ये 0 लगाया ऊपर तो ही वो एंगल की डिग्री होगी या एंगल का मेजरमेंट होगा, जिसे हम पढ़ेंगे 30 डिग्री। होप यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ द एंगल, राइट, एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल। ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर and let's see the first type of angle that we have to learn. First type of angle is a right angle. A right angle is most important angle because it is used to measure all other angles. Okay, right angle एक बहुत important angle है because इसी के बेस पे या इसी को आधार बनाकर हम दूसरे एंगल्स को मेजर करते हैं। ओके, एंगल्स का जो है बेसिक जो है वो सेम है, मतलब एंगल्स में दो आर्म होने चाहिए और दोनों आर्म्स कहाँ पे मिलने चाहिए? एक कॉमन पॉइंट पे। नाउ इन दिस एंगल वी हैव अ arm AO and other arm OB which meets at a common point O और vertex, हम उसको vertex बोलते हैं, लेकिन अभी इस vertex को मैंने क्या नाम दिया है? O, which meets at a common point O, and this common point an angle is formed, right? Once again, arm AO meets the arm OB at a common point O, an angle is formed. Okay. राइट एंगल मेजर्स 90 डिग्री। राइट एंगल जो है उसका जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, राइट। एंड
हमको इजीली कैसे याद रहेगा पता है, ये राइट एंगल है या क्या है, कौन सा एंगल है, तो जो एंगल की एक आर्म स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन है, स्ट्रेट स्टैंडिंग वर्टिकल लाइन है, और दूसरा आर्म स्लीपिंग लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम उस एंगल को बोल सकते हैं राइट एंगल। इन अदर वर्ड्स ये एंगल हमेशा राइट ही होगा, स्ट्रेट खड़ा होगा, कभी भी बेंड या और कोई शेप नहीं होगा। उसका एक आर्म स्ट्रेट लाइन होगी और एक आर्म हॉरिजॉन्टल स्लीपिंग लाइन होगी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इन फॉर आवर 4th स्टैंडर्ड हमें एंगल्स की डिग्री फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें एंगल्स की मेजरमेंट नहीं करनी है। ओके, सो दिस 90 डिग्री मेजरमेंट ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। इन 4th स्टैंडर्ड वी आर जस्ट making ourselves familiar with different types of angles। हम सिर्फ अपने आप को अलग अलग एंगल्स से परिचित करवा रहे हैं 4th स्टैंडर्ड में। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ एनी एंगल्स, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल। द नेक्स्ट एंगल इज एन acute angle, an angle which is smaller than right angle is called acute angle. The angle which is smaller than right angle is called acute angle. Now let's see with the help of diagram. Can you see the dotted lines? Yes, these dotted lines I have shown to represent the right angle. ये जो dotted lines है वो right angle का एक arm represent कर रहा है। Okay? इसको मैंने नाम नहीं दिया इसके लिए, ये राइट एंगल का एक आर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, जो एंगल राइट एंगल से छोटा है वो है एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट मतलब छोटा सा एंगल, एक्यूट एंगल। ओके, तो ये अब ये एंगल के आर्म्स क्या है, ए ओ एंड ओ बी, कहाँ पे मिल रहे हैं, यस यू आर राइट, दे आर मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट ओ। An angle is formed between these two arm which is smaller than the right angle। देखिए राइट एंगल के लिए मैंने बड़ा ऐसा स्क्वायर टाइप बताया है, वो बड़ा है, और उसके अंदर मैंने ये एक्यूट एंगल का बताया है। सो द एक्यूट एंगल इज स्मॉलर दैन राइट एंगल। इसको और इजीली याद रखने के लिए हमेशा याद रखना, एक्यूट एंगल हमेशा राइट एंगल जो है ना उसके राइट हैंड साइड में रहेगा, उसके राइट हैंड साइड में। देखना ये राइट हैंड साइड में जितने भी एंगल्स होंगे वो रहेंगे आपके एक्यूट एंगल। नाउ व्हाट इज अ मेजरमेंट ऑफ एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एंगल मेजर्स देन लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल कब कहलाएगा, जब वो राइट एंगल से छोटा होगा, और राइट एंगल का डिग्री कितना अभी अभी हमने पढ़ा था, यस यू आर राइट 90 डिग्री। तो अगर कोई भी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होगा तो वो होगा एक्यूट एंगल। इन अदर वर्ड्स, इफ एन एंगल मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री टू 89 डिग्री देन इट इज़ एन एक्यूट एंगल। वंस अगेन ये डिग्रीज को आपको इतना ध्यान नहीं देना है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज विच विल हेल्प यू इन योर फर्दर क्लासेस आई एम टेलिंग यू, एंड ऑल्सो फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये थोड़ा नॉलेज होगा तो अच्छा होगा, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। नाउ लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, टाइप्स नहीं बोल सकते हैं, अलग अलग एक्यूट एंगल हम जो बनाते हैं वो, ठीक है। सी एन एक्यूट एंगल मैंने यहाँ पे बनाया है, दिस इज डॉटेड लाइन अगेन रिप्रेजेंटेटिंग व्हाट, यस इट इज रिप्रेजेंटेटिंग राइट एंगल, एंड विच इज माई एक्यूट एंगल, माई एक्यूट एंगल इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ टू आर्म्स P O and O Q, okay, हाँ, at a common point O। so my acute angle, ये मेरा acute angle, देखो ये right angle के अंदर के तरफ है, ये right angle के अंदर की तरफ है या वो right hand side में है, ठीक है। अब दूसरा एक acute angle देखते हैं, ये देखो ये dotted line मेरी right angle है और मेरा acute angle के दो आर्म है M O O N, कॉमन मीटिंग पॉइंट या वर्टेक्स क्या है इनका O।
तो एंगल जो बना है वो मेरा ये दो लाइनों के बीच में है, जो है एक्यूट एंगल, और वो किस तरफ है, राइट हैंड साइड में है। किस तरफ है, राइट हैंड साइड में है, या राइट एंगल के अंदर की तरफ है, राइट एंगल के अंदर की तरफ है। होप यू अंडरस्टूड द एक्यूट एंगल. Now let us see the third type of angle, that is the obtuse angle. An angle which is bigger than right angle is called obtuse angle. जो एंगल राइट एंगल से बड़ा है, बिगर है, उसे हम कहेंगे obtuse एंगल. क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ, सिंपल डेफिनेशन है. देखो, जो एंगल राइट एंगल से बड़ा है, राइट एंगल से बड़ा है, वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल. अब हम ये ज्योमेट्रिकल फिगर का हेल्प लेके इसे समझते हैं. ये डॉटेड लाइन मैंने क्या बताई है? यस, यू आर राइट, दिस इज राइट एंगल. सो नाउ आर्म एक्स ओ एंड आर्म ओ एक्स meet at a common point O, which forms an angle, that is an obtuse angle, which is bigger than the right angle. Right? समझ में आया? एक और बार फिर से बोलूँ. An obtuse angle कैसे फॉर्म हुआ है? By joining the two arms OXO and OY at a common point O. And obtuse angle is bigger than the right angle. obtuse angle हमेशा राइट एंगल के बाहर की तरफ होगा. किस तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा, या आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा, या आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा. राइट? ये obtuse एंगल राइट एंगल से बड़ा है, तो उसका मेजरमेंट क्या होगा? यस, यू आर राइट. द obtuse एंगल मेजर्स मोर देन 90 डिग्री. हाँ, अगर वो 90 डिग्री होगा तो वो राइट एंगल होगा, अगर 90 से कम होगा तो वो एक्यूट एंगल होगा. तो अब ऑब्ट्यूस एंगल कब होगा? जब वो 90 डिग्री से ज़्यादा मेजर करेगा, दैट इज़ बिटवीन 91 डिग्री टू 180 डिग्री. यू अंडरस्टूड दिस? वंस अगेन, ऑब्ट्यूस एंगल इज़ बिगर देन राइट एंगल. इट इज़ to the left of the right angle. It is outside the right angle. It measures more than 90 degree. Now let us see how the different types of obtuse angle we draw. Yes, this is an obtuse angle. Again, the dotted line representing right angle. Okay, I got a obtuse angle with the help of two arms SO and OT. that meets at a common point O. Can you see? ये जो मैंने राइट एंगल के लिए स्क्वायर वाला यूज़ किया है, दैट इज़ माई राइट एंगल. और मेरा ऑब्ट्यूस एंगल मैंने बाहर से बताया. इसका मतलब क्या है? मेरा ऑब्ट्यूस एंगल राइट एंगल से बड़ा है. राइट? नाउ सी दिस डायग्राम. इन दिस ऑब्ट्यूस एंगल इज फॉर्म्ड. डॉटेड लाइन, राइट एंगल. My obtuse angle is formed with the help of two arms RO and OS. Yes. Now this obtuse angle is at the outside, मतलब राइट हैंड के बाहर है, राइट एंगल के बाहर है, और वो लेफ्ट हैंड साइड में लोकेटेड है. इसके लिए वो हम obtuse एंगल या वो बिगर एंगल देन अ राइट एंगल है. ओके, सो obtuse एंगल इज दैट एंगल विच इज bigger than right angle. Acute angle is smaller than right angle, and right angle is that angle which is used to measure all angles. Okay. With this, we come to an end of this chapter number 1, topic angles. I have included all the points which will help you to do your textbook exercise. Hope you all have understood it very well. That's all for today. Bye bye. Take care.